Today's topic is dietary management of non-cirrhotic person with obesity and fatty liver disease. NFLD is including spectrum of condition characterized by hepatic fat accumulation, including absence of primary causes, including alcohol abuse. NFLD is known to main cause of developing chronic liver disease. It's lead to NASH and cirrhosis and even hepatocellular carcinoma, and it is the main reason for developing liver transplant. Prevalence of NFLD and NASH is rising worldwide in parallel with the increase in prevalence of obesity and metabolic comorbid diseases like diabetes, insulin resistance, dyslipidemia, central obesity, and hypertension. As you can see here, there are major number of NFLD patients in the patient who are suffering from diabetes and obesity. There is a more prevalence that near about 70% patients are more likely to develop NFLD. Categories of NFLD, this can be categorized as in two conditions like NFL and NASH. NFL को हम simple steatosis भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें steatosis होता है यानी fat accumulation है but no inflammation or ballooning. And NASH is a progressive form of NFL. In this condition, steatosis with inflammation and hepatocyte injury also present. NASH can be increase the risk of cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Causes of NFLD. The primary cause is unhealthy diet and sedentary lifestyle. And metabolic syndrome, in which central obesity is the main factor. And if your waist circumference is more than 94 in men's and more than 80 centimeters for females, then that means you are obese. And hypertension, where arterial pressure is more than 130 by 85 mmHg, and dyslipidemia, where the serum triglyceride is more than 150 mg per dl, and HDL cholesterol, if less than 40 in men and less than 50 in females. And other condition is insulin resistance or fasting glucose level if more than 100 mg per dl. These are the conditions which are responsible for developing NFLD और fatty liver. Secondary cause क्या है? Secondary causes में है आपका सबसे पहले तो hormonal imbalance, इसमें hypothyroidism, PCOS and other hormonal imbalance are also include. And toxin exposure, बहुत लॉन्ग टर्म पे कोई बहुत मेडिकेशन पे रह रहा है, जो कंटिन्यूस मेडिसिन पे रहते हैं, उनमें भी फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड सीवियर वेट लॉस, सडन वेट लॉस हो रहा है या सीवियर वेट लॉस है, किसी में भी मैल नरिशमेंट है, तो उनमें भी फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. एंड हियर इज अ पिक्चर व्हिच इज शोइंग सम मल्टीपल फैक्टर्स एंड फर्स्ट हिट, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. ये एक हाइपोथेसिस है जिसमें कहते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग NFLD. These factors are plasma free fatty acid, oxidative stress, liver inflammation, adipose tissue scarring, hormonal imbalance, nutritional factor, gut microbiota, and genetic factor. These all factors are responsible for increasing fat accumulation in the liver. And there is also one more factor is there, which is insulin resistance. This is a central cause of increasing fat in liver. When these all factors come together, they increase the risk and severity of liver disease or fatty liver. Symptoms of NFLD: fatigue, pain or discomfort in upper right abdomen, persistent nausea and vomiting, generalized weakness, appetite loss. These are the common symptoms. And if the disease progresses, then other symptoms also includes like unexplained weight loss, itchy skin, swelling in leg or tummy, abdominal swelling or ascites, enlargement of blood vessels, red palm, yellowing of skin and eyes. Pathogenesis: sedentary diet and unhealthy lifestyle, sedentary lifestyle are the main factors of
डेवलपिंग फैटी लिवर। ये जो मेन फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफस्टाइल एंड हमारा जो खान पान है, सबसे बड़ा कारक है फैटी लिवर को डेवलप होने का। जैसे कि आप देख रहे हो वेस्टर्न डाइट, आजकल के अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन के दौर में हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह की चीजें ज्यादा ले रहे हैं। चिप्स, कुरकुरे, कॉफी और बेवरेजेस में अल्कोहलिक बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सब भी हमारी डाइट में इंक्लूड होते जा रहे हैं। इस तरीके की डाइट का मेन क्या होता है, मेन फैक्टर्स ये है कि ये कैलोरी डेंस होती हैं। पहली चीज तो सैचुरेटेड फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, हाई फ्रक्टोज होता है, हाईली रिफाइंड कार्ब्स इसमें होते हैं, लाइक पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, पास्ता, इस तरह की चीजें हमारी सिंपल कार्ब्स का ही एक एग्जांपल है। और जब इन तरीके के डाइट का कंजप्शन लगातार ज्यादा होता रहता है, तो ये आपकी ओबेसिटी को बढ़ाते हैं एंड इसके साथ साथ अदर कोमॉर्बिड डिजीजेस को के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं, जैसे डिसलिपिडीमिया हो गया या हाई कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं। देखिए, ऐसी कंडीशंस भी आ जाती है जिसकी वजह से आगे चल के फैटी लिवर के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं ये। डाइटरी पैटर्न इन एनएफएलडी, आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 तरीके की डाइट हैं। पहला, वेस्टर्न डाइट, जो कि अभी हमने बताया कि वेस्टर्न डाइट का मतलब यही हुआ कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है या बहुत फैंसी फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। इजी टू कंज्यूम चीजें हम लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं, अ, जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गए, आपका पास्ता है, पिज्जा है, बर्गर है और चिप्स, कुरकुरे, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्लूड होने लगी हैं। और इन सब में ही सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, लो लेवल ऑफ प्रोटीन है, एंड फूफा का अमाउंट भी बहुत कम होता है, सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा होता है, फाइबर बहुत मिनिमम फाइबर इसमें है। एंड ये सारी ही चीजें आपकी एनएफएलडी यानी फैटी लिवर के रिस्क को बढ़ा देती हैं। एंड 2 तरीके की डाइट और आप देख रहे हो यहाँ पे, मेडिटेरेनियन एंड डैश डाइट। ये दोनों ही डाइट, काफी रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ये 2 तरीके की डाइट जो हम देख रहे हैं, ये आपके लिवर के हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। इनका मेन फीचर क्या है? पहली चीज तो इनमें ट्रांस फैट का लेवल बहुत लो होता है, सैचुरेटेड फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम है, सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स का अमाउंट भी कम होता है। इनमें फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब, मिलेट, पल्सेस, लेग्यूम, बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। प्लस हेल्दी फैट इंक्लूड करते हैं हमें, जैसे ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, ये फैट ज्यादा अमाउंट में होता है। प्लस एडिक्वेट प्रोटीन होता है। ये सारी ही क्वालिटीज इन दोनों ही डाइट को बहुत अच्छा बनाती हैं, जिसकी वजह से अगर हम इस तरीके की डाइट अगर ले रहे हैं तो आपका ग्लाइसीमिक लोड कम रहता है, लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहती है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल अच्छी रहती है, और आपके वेट को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, तो ट्राई टू कंज्यूम दिस काइंड ऑफ डाइट, नॉट अ वेस्टर्न डाइट। फैक्ट। तो अभी तक हमने बात की क्या रीजन है इसके पीछे, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें लेना है और क्या जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या रोल है हमारी एनएफएलडी में या हमारी हेल्थ में। पहला हो गया फैट। फैट इंटेक शुड बी लेस देन 30% ऑफ टोटल कैलोरी। 30% से ज्यादा फैट का कंजप्शन नहीं होना चाहिए। उसमें भी सैचुरेटेड फैट का लेवल आपको लेस देन 7% रखना चाहिए। सैचुरेटेड फैट हमारे लिवर फैट को बढ़ाता है, लिवर लाइपोजेनेसिस और इंक्रीज लाइपोलिसिस ऑफ एडिपोज टिश्यू, एंड it also increase oxidative stress which leads to progression of NFLD. Trans fat should be less than 1% as it has pro-inflammatory action and also disturb lipid profile. Unsaturated fat, MUFA. MUFA helps to reduce lipolysis, preventing accumulation of fat in the liver. Omega-6 prevents liver fat accumulation. Omega-3 improves severe liver injury such as inflammation and fibrosis. MUFA increase HDL cholesterol, decrease total cholesterol, and improve overall lipid profile. MUFA reduce inflammation and contribute to improvement of overall clinical picture of NFLD. Carbohydrate should be 50 to 60% of total calorie, and increase amount of complex carbohydrate rich in dietary fiber.
Ingestion of simple carbohydrate should not be more than 10% of total calorie. Increase in fructose consumption, increase fibrosis and swelling. So try to reduce fructose intake. Fructose, it's present in non-alcoholic beverages, juices, and other sugar syrups. So try to reduce the consumption of fructose. Protein should constitute more than 20% of total calorie. Protein deficiency as well as malnutrition can also lead to NASH. High protein and low carbohydrate diet helps to improve carbohydrate metabolism, decrease liver steatosis, and inhibit lipogenesis. Moderate intake of protein is optimal for patients with NAFLD due to the elevation of insulin resistance. In summarized way, we can say that carbohydrate should be 50 to 60% of total calorie. Mainly carbohydrate जो हमारा होना चाहिए वो complex carb के form में होना चाहिए. And you should limit the free sugars less than 10% of total calorie, and it is better to limit the intake of free sugar less than 5%, which is more beneficial. So include fiber in your diet. Soluble and insoluble, both fiber are helpful. And dietary fiber up to 35 to 40 gram per day is recommended, and 25 gram dietary fiber for each 1000 calorie is recommended. Protein should be 20 to 25% of total calorie, and try to include protein from high biological value, and also include some branch chain amino acid in your diet. Fat should be 20 to 30% of total calories. Saturated fat should be less than 10%, and trans fatty acid should be less than 1% of total calorie. Include omega-3 and omega-6 fatty acid in your diet. Protective factor, first is no or little alcohol. Means alcohol आपको बिल्कुल avoid करना चाहिए. ये कहीं भी recommended नहीं है कि आप alcohol ले सकते हैं. In case अगर आपको लेना भी है, occasionally लेते हैं, parties वगैरह में अगर लेते भी हैं, तो please try to limit the alcohol intake, which is recommended 30 grams for male and 20 grams for females. But it's better to avoid coffee drinking and green tea. Coffee and green tea is having a phenolic compound, which is beneficial for liver health. Omega-3 PUFA and fish oil, walnut, salmon, and shellfish are the richest source of omega-3. So try to include in your diet. Mofa, olive oil, nuts, peanut, and peanut butter. You can also include in any form in your diet. Low glycemic food, oats, soya, whole grain. These food are helpful to improve your insulin level, insulin profile. So soya protein and whey protein are good example of proteins. You can also include these in your diet. Dietary fiber like whole grain, leafy vegetables, green vegetables, salad. In any form, you can add fiber in your diet. Antioxidant rich food. Antioxidant helps to reduce oxidative stress. So it is also helpful for your NAFLD. So try to include fresh fruits, vegetable, colorful fruits, and nuts, seeds. They are rich in antioxidant, so please include in your diet. Vitamin E, this is recommended that about 800 international unit per day is recommended by the various guidelines, which shows that it reduces hepatic oxidative stress damage, reduce hepatic inflammation, and reduce hepatic fibrosis. Dietary and lifestyle modification या management in NAFLD. First is calorie restriction. Creating an energy deficient is the priority with reduction of saturated fat. सबसे पहली चीज तो आपको जितना कैलोरी की नीड है आप उतना ही कंज्यूम करें, क्योंकि बेसिकली देखा क्या जाता है कि कैलोरी नीड बहुत कम होती है बट कंजप्शन उससे कहीं ज्यादा होता है, जो कि आगे चल के आपके ओबेसिटी को बढ़ाता है. एंड सेकेंड इज वेट रिडक्शन. देखा गया है कि लगभग 5% वेट लॉस जो होता है वो स्टेटोसिस को इम्प्रूव करता है, 7% तक का वेट लॉस आपके नैश के हिस्टोलॉजी को इम्प्रूव करता है.
10% weight loss improve fibrosis and regression. एंड टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? वेट लॉस टारगेट हमारा यही है कि टोटल जितना कैलोरी कंजप्शन है उसका लगभग 30% कैलोरी कम लेना चाहिए हमें और वेट रिडक्शन, या अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि लगभग 500 से 1000 कैलोरी पर डे का रिडक्शन आपको जितना टोटल कैलोरी कंजप्शन है उससे करना चाहिए। टारगेट वेट लॉस हमारा 0.5 से 1 kg पर वीक होना चाहिए। इससे ज्यादा का वेट लॉस अगर आप करते हैं, बहुत ही जल्दी वेट लॉस करना भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिवर की पैथोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। फॉर लीन इंडिविजुअल एनर्जी शुड बी बैलेंस विद एक्सपेंडिचर। इन केस अगर कोई कहता है कि हम वेट मेरा ज्यादा नहीं है तो मैं वेट क्यों कम करूँ, तो आपको वेट कम नहीं करना है, बट आपका वेट आपको एनर्जी और आपके एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। आपका कैलोरी कंजप्शन उतना ही हो जितना कि आपकी नीड है, ना कम ना बहुत ज्यादा। वेट लॉस इज एडवाइजेबल फॉर ओवरवेट। अगर आपका बीएमआई 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स यू नीड टू रिड्यूस सम वेट। रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड वेट लॉस नहीं होना चाहिए, कि अगर ऐसा होता है बहुत जल्दी बहुत तेजी से वेट लॉस करते हैं तो वो आपके एनएफएलडी की कंडीशन को और भी वर्स कर सकता है। रिड्यूस सोडियम, सोडियम इंटेक भी आपका कम होना चाहिए। फाइबर इंटेक मोर देन 25 ग्राम पर डे आप फाइबर इंटेक आपकी डाइट में होना चाहिए। आप फाइबर को वेजीज के, फ्रूट से, होल ग्रेन, नट्स या सैलेड के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रक्टोज इंटेक, अवॉइड फ्रक्टोज कंटेनिंग बेवरेजेस और फूड। एल्कोहल, it is not advisable anywhere, so please try to avoid alcohol intake or reduce it. Coffee drinking, there is no coffee related researches are there, but you can consume 2 to 3 cup per day. फिजिकल एक्टिविटी, डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अकेले सिर्फ डाइट से आप पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप दोनों चीजों को साथ में लेके चले। डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। एरोबिक, दो तरीके की डाइट से हम एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, एरोबिक एंड रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइज फॉर 30 to 60 minutes more than 3 times per week, greater than 50 to 70% of maximum heart rate is recommended for at least 6 weeks was found to be effective. एरोबिक एक्सरसाइजेस में जैसे आपका ब्रिस्क वॉक है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, इस तरीके की एक्टिविटी आप इंक्लूड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में 50 to 60% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर 30 to 60 मिनट मोर देन 3 times per week इज रिकमेंडेड। आप कोई भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। मॉडरेट टू विग्रेस एक्सरसाइजेस डिक्रीज द रिस्क ऑफ फैटी लिवर और इम्प्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ एन existing fatty liver, decrease insulin resistance and reduce fat content in in your body. वेट रिडक्शन के लिए देखा गया है कि जितना अगर आप एक्सरसाइजेस या फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान देते हैं तो आपका वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है और आपका वेट मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आप इनमें से भी कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, आप इतना लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, अपनी डेली लाइफ स्टाइल आपकी ऐसी है, सेडेंटरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत सिटिंग आवर्स बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करिए कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। आप जहाँ पे भी वर्क प्लेस है, आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज करिए। आपको कहीं पे जाना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन मोड की अगर बहुत कम दूरी के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप पैदल जाना ज्यादा प्रेफर करिए, साइकिलिंग करिए। इस तरीके की चीजें, छोटे छोटे चेंजेस आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। ठीक है, घर का क्लीनिंग हो गया आपका, जैसे पेट्स है, पेट्स को आप बाहर वॉक कराने ले जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, तो आपको वो भी एक तरीके की एक्सरसाइजेस ही है। इस तरीके के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों को ही साथ में लेके चलिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन का मेन पार्ट आपका यही है। कट डाउन एल्कोहल, एल्कोहल कंजप्शन को बिल्कुल कम करिए। क्वालिटी स्लीप लीजिए, लगभग 6 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। अगर उतना नहीं हो सकता है तो जितनी भी नींद है आपकी एटलीस्ट पीसफुल हो। आप सोने से पहले अपने जितने भी गैजेट्स हैं या जितने भी
ये आपके डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, उनको हटा दीजिए। प्रिजर्वेटिव्स, जितना हो सके उतना कम से कम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करिए। नेचुरल फूड कंजप्शन बढ़ाइए अपना। प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करिए। स्ट्रेस कम करिए। योगा, मेडिटेशन या अदर हॉबीज अपने अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके। फाइबर को अच्छे से खाने में इंक्लूड करिए एंड मेंटेन हाइड्रेशन। इन सब चीजों के अलावा हाइड्रेशन पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन aim at weight loss and increase activity are essential for all patients. Patients should be encouraged to eat healthy, exercise regularly, active, positive thinking towards life. हमेशा पॉजिटिव रहिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।